Assalamu alaikum all of you. Hope you all are doing well. थोड़ा सा टाइम की पाबंदी किया करें. बी ऑन टाइम. एवरीवन शुड बी ऑन टाइम ताकि हम अपनी क्लास को प्रॉपर्ली टाइम पर ही स्टार्ट कर सकें. ठीक है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. वी कैन नॉट डिले टू मच. तो सेंस ये कि विल बी स्टार्टिंग वेरी क्विकली. होप यू आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली. आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? Reply in comments. Okay, very well. Very good. So you remember what we have studied last time? कहाँ तक हमने कर लिया था? We will be starting from the same point. What left behind? Can you recall some of the things we have discussed in the previous class? और एक दो मिनट. I won't wait too much today. और मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा. ठीक है. और हम अपना टॉपिक क्विकली स्टार्ट कर देंगे. थोड़ा सा टाइम की पाबंदी किया करें. ठीक है. So without delay, yes, absolutely right. हमने इरशाद we left the thing on second conditional. आज हम एक और conditional की बात करेंगे, third conditional, और it won't take too much time. After that, we'll start another topic. ठीक है. उसके बाद हम एक और topic start करेंगे. So without delay, I'm going to share my screen with you all, and we'll talk about the third conditional. Any idea? कोई आइडिया है आपको कि थर्ड कंडीशनल कहाँ इस्तेमाल होता है और व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सेकंड कंडीशनल एंड द थर्ड कंडीशनल? एनी आइडिया अबाउट व्हाई डू वी यूज थर्ड कंडीशनल? क्यों इस्तेमाल करते हैं थर्ड कंडीशनल का? व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंडीशनल्स? है ना. डिफरेंट कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है? और थर्ड कंडीशनल स्पेशली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशनल. उसके बाद हम कंबाइंड एक्सरसाइजेस लेंगे जिसमें पर सेकंड थर्ड और जीरो कंडीशनल होगा और यू हैव टू गेस कि व्हाट टू पुट इन इट. तो विदाउट डिले लेट मी स्टार्ट माय लेक्चर. जस्ट रिकॉल सम थिंग्स और टेल मी कि थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है. कोई आइडिया है आपको? कैन यू प्लीज शेयर सम ऑफ यू? Write down in the comments, please. Any idea? No one has got any idea about third conditional? Write in the comment box. चलें. I'm going to share my screen with you all. ठीक है. मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं.
और we will get to know कि third conditional क्या होता है और what's the difference between third conditional and second conditional. अच्छा, जरा जीरो कंडीशनल का फॉर्मूला राइट कीजिएगा कमेंट में. जीरो कंडीशनल का क्या फॉर्मूला था? Write down in the chat box, please. What was the structure of zero conditional? Write down here. Zero conditional. Yes. Tell me the structure. Zero conditional का structure बताइएगा. If plus present indefinite plus present indefinite. ठीक है. What about the second condition? First conditional. First conditional का structure क्या था? Yes, absolutely. If plus simple present plus कॉमा प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट. एक बात का ख्याल रखेंगे, अगर एक शुरू में आ रहा है तो बीच में कॉमा पुट करना होगा. चलें, लेट्स मूव ऑन. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. Okay, everyone. So we are going to start now. Let's watch this video carefully and listen to it. Then we will talk about, okay? Third conditional. See the structure and the formulation. If with past perfect in the condition would have and past participle. Let's see. This is the structure of third conditional. ठीक है? If you notice that, अगर आपको याद हो कि there was some differences. अगर मैं इसका comparison करूं किसके साथ, इसका comparison मैं करूं second conditional के साथ, तो look at the second conditional structure here. Second conditional का structure था if plus simple past, comma subject plus would and plus verb first form. Remember, verb first form. This was the structure of second conditional, है ना? ये second conditional का structure था. लेकिन अगर आप third conditional से इसका comparison करेंगे तो what will you find out? आप देखेंगे कि क्या difference आ रहा है. if के बाद past perfect tense आ रहा है, ठीक है, कॉमा उसके बाद would have आ रहा है. अच्छा, not only the would have, यहाँ could have भी हो सकता है, could have भी हो सकता है और might have भी हो सकता है. could have भी हो सकता है या फिर might have भी हो सकता है. might have. अच्छा, इनमें ये भी आ सकता है, could have भी आ सकता है, would have भी आ सकता है, might have भी आ सकता है. we will talk about, हम अभी बात करेंगे इस पर कि कहां कहां क्या चीज आ सकती है. ठीक है. what is the difference what we have read earlier? हमने जो पहले पढ़ा था वो हमने second conditional पढ़ा था, ये पढ़ा था. ठीक है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड कंडीशनल पढ़ रहे हो. थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट. कैन एनीवन टेल मी द पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला? पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताएंगे मुझे. पास्ट परफेक्ट, अगर मैं इसको और ब्रेकअप करूं तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? यस प्लीज. सब्जेक्ट. यस प्लीज. सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यस, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. तो ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है. अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को. किसको कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो यहां परेशान मत होइएगा. वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया आपने. क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? ओके, वेरी वेल. लेट्स मूव ऑन. आई एम क्लियरिंग माय स्क्रीन नाउ. And past participle.
with a past result. The third conditional is the result of changing events in the past. क्या कहा जा रहा है? थर्ड कंडीशनल इज द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इवेंट्स इन द पास्ट. आप अगर आसान अल्फाज में कहेंगे तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि कोई जो रियल में हैपनिंग होती है ना, उसका ऑपोजिट होता है. रियल में हैपनिंग होती है, उसका ऑपोजिट होता है. आप सबने फर्स्ट ईयर पढ़ा है. फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था बर्केनहेड ड्रिल. अगर आपको याद हो तो जरा से जहन में लाइएगा, उसमें एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस था. तो वी विल टॉक अबाउट, मैं भी आपको लिखकर भी दिखाऊंगा. और वो क्या था जरा गौर कीजिएगा. बर्केनहेड ड्रिल में क्या हुआ था? क्या जहाज डूब गया था? रिमेंबर, तो आपको जहन में आ जाएगा कि बर्केनहेड ड्रिल में एक स्ट्रक्चर था इस थर्ड कंडीशनल का. अभी मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगा. लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. Last weekend in the country. If you had slept earlier, you wouldn't have felt tired. If I had done exercise, I would have felt stronger. If we hadn't eaten junk food, we wouldn't have felt sick. He wouldn't have felt sick if he had taken his medicine. She wouldn't have got sunburnt if she had used sun cream. Let's see. Have you noticed कोई भी जो भी पास्ट हैपनिंग है उसका जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसको हम किस में बयान कर रहे हैं? थर्ड कंडीशनल में, यानी उसका ऑपोजिट सेंस. अब लेट्स सी, अगर आपको याद हो तो वहां ये एक स्ट्रक्चर था. आई एम राइटिंग डाउन हियर. अगर आपको याद हो तो हमने बर्केनहेड में कुछ इस तरह का सेंटेंस पढ़ा था. याद है आप लोगों को? If there had been a panic, remember Birkenhead drill. अगर वहां कोई अफरा तफरी होती, कोई झगड़ा शुरू हो जाता, तो क्या होता? Women, children, and old might have died. Remember, might have या would have died. ये एक सेंटेंस था जो आपके पास वहां दिया हुआ था. क्या? If there had been a panic, women, children and old might have died. तो let's see, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां. Remember, Birkenhead drill में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर वहां दिया गया था. If there had been a panic, women, children and old might have died. अगर वहां किसी किस्म की अफरा तफरी हुई होती या हो चुकी होती तो बच्चे, औरतें और बूढ़े मारे जा चुके होते. रिमेंबर दिस सेंस. यानी इसका ऑपोजिट हुआ था. ऑपोजिट क्या हुआ था? हुआ ये था कि वहां किसी किस्म का पैनिक नहीं हुआ था. तो आप इसको अनरियल भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? अनरियल. यानी जो रियल हैपनिंग्स होती हैं उसका जस्ट ऑपोजिट है ना. क्योंकि हम इसमें रेगरेट कर रहे होते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी जो रियल हैपनिंग होती है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या कहलाता है? थर्ड कंडीशनल कहलाता है. कि इफ देयर हैड बीन अ पैनिक, अगर वहां एक झगड़ा वगैरह या अफरा तफरी हो चुकी होती तो women, children and old might have died. ये उस चैप्टर में आपके पास दिया हुआ था ये सेंटेंस, इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसका इफेक्ट देख रहे होते हैं पास्ट हैपनिंग का. लेट्स गो ऑन. यहां तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? क्लियर हो गया सब? थर्ड कंडीशनल में हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्या है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, कॉमा, वुड हैव या माइट हैव या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. क्लियर? चले लेट्स मूव ऑन. मैं इसको क्या कर दूं? वेट फॉर व्हाइल. ओके जनाब, लेट्स मूव ऑन.
nicer to each other. Would and verb with a present result. This week at home. If you had slept more last night, you wouldn't feel tired this morning. अच्छा आप देखें, if you would have slept last night, you wouldn't have tired this morning. देख रहे हैं आप? यानी इसमें क्या हुआ? वो सोया नहीं या सोई नहीं, है ना? तो अब क्या कर रही है? बहुत टायर्ड महसूस कर रही है. It means that real का opposite यानी unreal. अगर वो सो जाती तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अगर वो सो जाता तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता, बिल्कुल फ्री महसूस करता. तो गॉट द सेंस, जो भी आपका ऑपोजिट, जो भी आपकी रियल हैपनिंग है उसका ऑपोजिट रिजल्ट बताया जा रहा है. तो दिस इज द सेंस. यू वुड हैव गॉन. If I had done exercise this हाँ चले आप बताइए. If I had done exercise this morning. If I had done exercise this morning. क्या हो सकता है possibly? Yes. If I had done exercise this morning. क्या होता है? चलें आप बताइए. What will be its possible result if I had done exercise this morning? क्या इमेजिन करेंगे? अगर मैं आज सुबह एक्सरसाइज कर चुका होता या कर ली होती तो क्या होता? शेयर योर रिजल्ट, शेयर योर थॉट्स. आई वुड हैव फेल्ट हेल्दी. वेरी गुड. और क्या हो सकता है? अब देखें स्ट्रक्चर देख रहे हैं. और क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर जरा गौर करें. व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर? द सेंस वुड हैव. आई वुड रिमेन होगा या आई वुड हैव रिमेन? क्या कहते हैं? आई वुड रिमेन तो वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. हम कह रहे हैं वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. आई वुड हैव बीन एक्टिव. अच्छा आमना एजाज यहाँ बीन एक्टिव होगा क्योंकि एक्टिव एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, तो यहाँ आपको वर्ब लगाना पड़ेगा बीन. ठीक है. आई वुड हैव फेल्ट फ्रेश होल डे. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. आई वुड हैव बीन एक्टिव द होल डे. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. आमना एजाज थोड़ी सी करेक्शन. यस वेरी गुड. आई वुड हैव बीन सो लेजी. अगर आप एक्सरसाइज करते तो लेजी हो जाते मानूर. ये कुछ ऑपोजिट नहीं होगा, है ना? अगर आप एक्सरसाइज करते तो फ्रेश महसूस करते. आई वुड हैव बर्न कैलोरीज. एब्सोल्युटली राइट. So you have got the structure here. Let's move on to the next part of this video. Go on. Now I would feel strong and fit. If we hadn't eaten junk food today, we wouldn't feel sick right now. He wouldn't feel bad today if he had taken his pills yesterday. She wouldn't be sunburnt if she had used sun cream last Sunday. They would feel fresh right now if they had drunk water before. Our house wouldn't be crazy now if we had been nicer to each other. Sleep, feel, do, eat, take, get, use, drink, be. Slept, felt, done, eaten, taken, got, used, drunk, been. Sleep, do exercise, eat well, take your medicine, use sun cream, drink water. डन. ये वीडियो आपको समझ आई प्रॉपर्ली? क्लियर हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया. अब देखिए थर्ड कंडीशन. अब आपके पास क्या होगा? आपके पास एक या दो सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें यू हैव टू गेस कि अगला पार्ट क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू फिल अप. ठीक है. तो दिस इज अब एक कंबाइन एक्सरसाइज जहां आपके पास फर्स्ट कंडीशनल भी हो सकता है, सेकंड कंडीशनल भी हो सकता है, थर्ड कंडीशनल भी हो सकता है. यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ठीक है. आपने बड़ी केयरफुली इसको देखना होगा और यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. What would be the next part? You have to decide. So, if you have a clear understanding about all the structures, you won't feel any confusion. आपको कोई मसला नहीं होगा. You can easily decide कि क्या structure होगा और क्या इसका possible answer हो सकता है. ठीक है.
So I'm sharing one a screen with you, and you have to tell me such answers. ठीक है? Okay, Janab. See this. Let's see. Write what these people wish they had or they hadn't done. As an example, एक example आपसे share की गई है. John drove his car so fast that he had an accident. ठीक है? अब आपने बताना है. अच्छा, I wish भी इसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है. It is the same as if, है ना? If I hadn't drive my car so fast, I wouldn't have had an accident. है ना? देखा? अब लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस. पहला स्ट्रक्चर आपको करके बता दिया गया. आप आई विश की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो? इफ इस्तेमाल कर सकते हो. इफ आई हैडंट ड्रिवन माय कार सो फास्ट, अगर मैंने अपनी गाड़ी बहुत तेज नहीं चलाई होती, आई वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, तो मेरे साथ हादसा नहीं हो चुका होता. है ना? क्लियर? समझ आया? अब जरा अगला देखिए. जूली वॉज लेट एंड शी मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म. क्या होगा? Let's send me the answer in the chat box, please. क्या होगा? Julie was late and she missed the beginning of the film. How can you complete this? Write down, please. What will be the possible answer? Yes, please. Share your answer, please. Are you getting? Shall I? एक मैं करके बताऊं. If she wasn't late, she would have joined movie from the beginning. अच्छा, she wasn't होगा या she had been late होगा? क्या होगा? याद रखें, was second form है. यहां क्या होगा? Let's see here. आपके पास यहां होगा, देखिएगा जरा स्ट्रक्चर देखिएगा. If first must be capital, first letter must be capital. Julie had not been. ठीक है? ठीक है? जूली हैड नॉट बीन. अच्छा, अब आप ये बोले कि सर यहाँ वॉज क्यों नहीं आया, हैड बीन क्यों आया? तो बी वॉज बीन, इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है. वॉज और वर की थर्ड फॉर्म बीन होती है. इफ जूली हैड नॉट बीन लेट, कॉमा, शी wouldn't have missed. Missed the film, the beginning of the film. ठीक है? So this will be the okay. See this. So this will be the possible answer. और ये इसका क्या है? Possible answer है. Clear हुआ अभी? ठीक है? If Julie hadn't been late, she wouldn't have missed the beginning of the film. Now let's try to the next one. Sir, had नहीं लगा सकते. Had not लगाना जरूरी है. देखें ना, अब देखें. अगर आप यहाँ लगाएंगे, had लगाएंगे, तो क्या आप ये कह सकते हो कि had wouldn't have missed? है ना? आप देखें ना, कंडीशन का सेंस भी तो देखें. अगर हम कहते if Julie had been late, तो हम कहते she would have missed the beginning of the film. जब इसका सेंस बनता ना, सेंस नहीं बनता सेंटेंस का अगर हम कहते जूली हैड बीन लेट और शी वुडंट हैव मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द, ये कैसा हो जाता सेंटेंस? मतलब सेंस ही नहीं बनता. हम कह रहे हैं कि अगर जूली लेट नहीं हो चुकी होती तो वो फिल्म की बिगिनिंग मिस नहीं कर चुकी होती. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सर हैड नहीं, हैड नॉट लगाना जरूरी है. तो जी डेफिनेटली, क्योंकि सेंस नहीं बनेगा ना अगर सेंटेंस का सेंस. ठीक है? अब देखें, Jack ate too much and he was sick. अब क्या होगा? If Jack had not, क्या होना चाहिए बताएं? If Jack hadn't eaten too much, he wouldn't have been sick. Again, been sick. Sick adjective है. थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज समझनी होगी. मेरा अगला टॉपिक जो है ना वो एडजेक्टिव ही है कि आपको एडजेक्टिव्स को का ख्याल रखना है बड़ा, क्योंकि यहाँ आपकी जो मिस्टेक होगी ना वो यही होगी कि आप बीन वगैरह नहीं पुट कर सकोगे प्रॉपर्ली. तो आप लोगों को ये देखना होगा कि वर्ब की फॉर्म और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. देखें ये क्या लिखा हुआ है, ही वॉज सिक. अब आप देखें कॉमन सेंस है ना, ही वॉज सिक. ये देखिएगा,
ही और was, ही के साथ क्या आ रहा है, was आ रहा है, was आ रहा है तो इसका मतलब आगे एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा ना, he was sick, तो ये ही सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, was हेल्पिंग वर्ब है और sick एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, he was sick सिंपल पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। अभी हमने कंडीशनल में यही तो पढ़ा है, जीरो सेकंड कंडीशनल में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट है ये, ठीक है। तो जब आप इसका पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जब आप इसका पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो वो क्या होगा, इट विल बी ही हैड बीन सिक, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ये इसका पास्ट परफेक्ट होगा, समझ रहे हैं। अगर मैं ही वाज सिक का पास्ट परफेक्ट बनाऊं तो बनेगा ही हैड बीन सिक, ये कहलाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो रहा है। तो जरा सा इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस और ये सिंपल पास्ट है। क्लियर हो गया। चलें अब लेट्स सी मूव ऑन, अब लेट्स सी हम आगे चलते हैं और टू बी वेरी क्विक चलें जनाब। क्लायर वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग हर ड्राइविंग टेस्ट, शी डिडंट पास, क्या होगा, व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर, शेयर करें क्विकली, बड़ा आसान है। जी quickly share your answer. If Claire had not been very nervous during her driving test, she would have passed. Absolutely, exactly. अच्छा मानूर, इसमें wouldn't have तो नहीं आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सुमैया ने जो आंसर लिखा है, अलीजा ने जो आंसर लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी। देखें आपको सेंस भी देखना होगा। अच्छा शी वुड हैव पास्ड, रुबाब इसको थोड़ा सा करेक्ट करो रुबाब ताब। If Claire had been very nervous during her test, had not been लिखा है ना आपने, if Claire had not been very nervous during her test, she would have passed, ठीक है, she would have passed थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर, यस यस एब्सोल्युटली। इन चीजों का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना होगा। क्लियर, होपफुली कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्या हो गई है, समझ आ गई है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू लेट मी रिपीट, तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और जीरो कंडीशनल तमाम के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से पता चल गए हैं। और रुबा इफ हैड नॉट क्यों नहीं यूज होगा, सेंटेंस का सेंस भी तो देखना होगा कि सेंटेंस में सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर सेंस नहीं बन रहा तो हम यूज नहीं करेंगे ना, वही जो है मानूर वाली बात, ठीक है। सेंस बनेगा तो सेंटेंस सही लगेगा ना, अगर हमने ये नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, अभी वाले में तो लगेगा ना, देखे ना, नर्वस नहीं थी जब ही तो पास नहीं किया एग्जाम, अगर नर्वस होती नहीं होती तो पास कर लेती, और आपने यही तो लिखा है। यहां कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूं, इसका आंसर क्या होगा जरा बताइएगा मुझे। क्लायर, चले मैं लिखकर भी बता देता हूं आपको, सी दिस, इफ Claire had not been very nervous during her driving test, she would have, अच्छा इसकी जगह मैं might have भी लिख सकता हूं, could have भी लिख सकता हूं, ठीक है, could have भी आ सकता है इसकी जगह, it also make the sense, ठीक है, दोनों का मतलब यही है, might have भी हो सकता है और could have भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप could have passed भी कर सकते हो, ठीक है, this is the sense, clear।
If Claire had not been very nervous during her driving test, she could have passed. Clear हुआ अभी? समझ आया सबको? तो this is the sense, ये आपका क्या होगा? Possible answer होगा. Clear हो गया अभी? अभी तो कोई confusion नहीं है? Okay, very well. ठीक है जनाब. ये हमारा conditionals का topic क्या हो चुका है? Finish हो चुका है. Let's see. एक मैं आपको एड्रेस दे रहा हूं एक एक्सरसाइज का, ऑनलाइन एक्सरसाइज का. आपको जब टाइम मिले आपने यहाँ इसको करना है. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस की इस एक्सरसाइज को करना है. मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं और आपने इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं और यहाँ भी शेयर कर देता हूं. आपने इसको करना है. मैं आपसे 2-3 सवालात इससे पूछ रहा हूं और आप क्या करोगे? यू हैव टू डू इट. आपने अब खुद इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है एक बार. ओके, लेट्स मूव ऑन. लुक एट दिस. चलें जनाब, जल्दी से आंसर कीजिएगा. अ कंडीशनल सेंटेंस. हाँ जनाब, आवाज आ रही है आपको मेरी? A conditional sentence is a sentence that gives a condition. Okay, very well. Okay. ठीक है. अच्छा, बीच बीच में से पूछ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ सवालात हमने देख लिए थे. जी जनाब. If Don had seen the ball. Question number 7. Select the main clause that matches the condition. चलें जनाब, शेयर करें. Question number 7. If Don had seen the ball, क्या होगा? It wouldn't have hit her in the eye. समझ आ रही है? क्लियर हुआ? अच्छा, it wouldn't क्यों नहीं हो सकता जनाब? बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बाय द वे, बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड. हैव नहीं लगा हुआ, ये सिंपल पास्ट के साथ आने वाला स्ट्रक्चर है. एब्सोल्युटली. व्हाट इज द राइट आंसर? ए इज द राइट वन. ठीक है, तो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली क्या करना है? ट्राई करना है. और लेट्स सी. इफ आई हैड नोन आई वाज गोइंग टू लाइव दिस सॉन्ग. अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन आई वाज गोइंग टू लाइव दिस सॉन्ग, तो क्या करता? क्या आंसर होगा पॉसिबली? ए या बी? Yes, A. I would have taken better care of myself. Clear हो गया? सही है. अच्छा देखें, इसमें ये जो ना if I had known, ये मेन स्ट्रक्चर है, ये इसके साथ एक्सटेंशन लगा हुआ है. I was going to live this long. ठीक है, तो live this long, तो I wouldn't have taken better care of myself. तो सेंस ये है कि ये जो है एक्सटेंशन है. I was going to live this long, ये क्या है? ये एक्सटेंशन है. ठीक है, इसमें मेन स्ट्रक्चर क्या है? इफ क्लॉज वाला स्ट्रक्चर. इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टेकन बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, तो होपफुली कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. जी, अजलान कुछ कहना चाह रहे हैं. यस अजलान, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स. राइट डाउन इन द कमेंट्स अजलान. ओके फाइन. ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना सबको? सब क्लियर हो गया? चलें जनाब, अब आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं और यहां भी शेयर कर देता हूं कि आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार इन एक्सरसाइज को. अच्छा, इसमें सिर्फ आपने इस लिंक पर क्लिक करना होगा और आपके पास ये एक्सरसाइज ओपन हो जाएगी. कुछ लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि भाई ये ओपन नहीं होती. ऐसा नहीं है. जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्यों नहीं ओपन होगी ये? ठीक है, हाँ, ये जब चैट बॉक्स फिनिश हो जाता है तो ये नहीं होती. तो मैं यहाँ आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप जो है वो यहां से भी इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, तो आप यहां भी कर सकते हैं. और कोशिश करें, इस पर पूरी वीडियोस मौजूद हैं, उसको जरूर वॉच करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच. मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी आई हैव शेयर्ड विद यू द लिंक्स, तो यू कुड प्रैक्टिस. ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दी, शायस्तर शेयर कर दी, ग्रुप में भी शेयर कर दी और यहाँ भी शेयर कर दी है. एक बार और कर देता हूँ, ये लीजिएगा. ठीक है,
एवरीवन। यहां तक तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, अब हम एक और टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। एनी आइडिया अबाउट क्या होते हैं एडजेक्टिव और क्यों इस्तेमाल होते हैं? एनी डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन एडजेक्टिव की कुछ पता है आपको? व्हाई डू वी यूज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन एडजेक्टिव? देखें अभी आप लोगों को एक मसला आ रहा है ना, जैसे बीइंग सिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाउ विल यू डू दैट, है ना? तो एडजेक्टिव कैसे आप वो कर सकते हैं? जी जनाब, यस प्लीज कमेंट्स। यस प्लीज। quality quality of a noun, define quality of a noun. Just only noun, just only noun. Most of you are telling about noun. She is very active. यहाँ तो noun नहीं है, क्या है यहाँ? Verb की quality, sure. Describe a person. Quality of a noun or a pronoun. Yes, बिल्कुल. Absolutely Mahali, you're absolutely right. आप कैसे इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? A word which modifies a noun or a pronoun. ऐसा word जो किसी noun की या pronoun की क्या बताए? Quality को बताए. A word which modifies a noun or a pronoun is termed as adjective. ठीक है? ऐसा word जो किसी नाउन की या नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले चीज की क्वालिटी बताए, है ना? आपने प्रोनाउन का बहुत डिटेल टॉपिक पढ़ा है मुझसे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टाइप ऑफ प्रोनाउंस, ईच एंड एवरीथिंग, है ना? तो नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताया, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है? तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड वी विल वॉच अ शॉर्ट वीडियो अबाउट एंड देन वी विल we will talk about. ठीक है? I'm showing my screen with you. A very short video, ठीक है? Just for giving you a sense. I'm sharing my screen with you now. It's a very short video, just watch it and we will talk about. ठीक है? उसके बाद हम इस पर बात करेंगे. Okay, let's. Adjectives. Describing words. Words that describe the quality of a person, animal, place or thing are. अब देखें, person, animal, place और thing, ये सब किस में आता है? Noun में आता है. Clear हुआ? A word which modifies a noun, person, animal, place, thing, है ना? Called adjectives. Words for numbers, colors, size and shape are also adjectives. For example, smart boy, green parrot, big hall, round ball, one hen and two chicks. So, we see that words used to describe quality, color, size, shape and number are called adjectives. An adjective also describes how someone or something looks, tastes, feels
smells, or sounds like. इसके लिए एक वर्ड क्या है? look, taste, feel, smells और sound. इसके लिए एक वर्ड बताइए जल्दी से. Now adjective एक और चीज को डिफाइन कर रहा होता है, जल्दी से बताइए. How can we say in a single word? Senses, absolutely. हाँ, definitely. कि ये senses, adjective senses को भी डिफाइन कर रहा होता है, वो noun में आ जाएंगे. Clear? Senses, look कैसा लगता है? Gorgeous, है ना? Taste, sweet taste, feel, cold, feeling cold, है ना? Sound, too much noise. Clear हुआ? तो ये सब क्या है? इसमें adjective जो है वो noun के साथ आ रहा है और उसको क्या कर रहा है? Modify कर रहा है. क्या? चलें. Feels, smells, or sounds like. For example, beautiful girl. ये क्या होगा? गर्ल क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? और नाउन की अगर नाउन है तो कौन सी टाइप का नाउन है? नाउन का टॉपिक भी तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है. यस, आंसर मी प्लीज. कॉमन नाउन है. यस, एब्सोल्युटली कॉमन नाउन है. ठीक है, गो ऑन. ओके. Beautiful girl. Salty chips. Salty chips. Taste. Soft pillow. Feelings. Fresh fragrance. Smell. Loud music. Sound. Here, beautiful describes the looks of the girl. Salty describes the taste of the chips. Soft describes the feel of the pillow. Fresh describes the fragrance of the perfume. And loud describes the sound of the music. Okay, Janab. It was a brainstorming video. और ये एक छोटी सी वीडियो थी that helps you out to brainstorm your mind कि adjective जो है वो किसी भी चीज की क्वालिटी को, टेस्ट को और whatever नंबर को, शेप को डिफाइन कर रहा होता है. ठीक है, एनीथिंग. तो आप क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? आई एम राइटिंग डाउन इन द कमेंट्स. a word which modifies a noun or a pronoun. ठीक है, a word which modifies a noun or a pronoun is called adjective. ठीक है, adjective. ठीक है, तो this is a possible definition of adjective. Clear हुआ? अब let's see here. I'm going to share one more thing with you, and this also help you out to understand the things very quickly or in a better manner. क्योंकि इसके बाद फिर see this. मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर. Okay, look at this. Easy examples of. ठीक है, adjective describes noun and pronoun. ये आपको मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया. Easy examples of adjective: old man, green coat, cheerful one. When adjectives are used like this, they are called attributive adjectives. Jack was old, है ना? Jack was old. Adjective can come after the noun as well. लेकिन डिफाइन किसको करेगा, मॉडिफाई किसको करेगा? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, चाहे आखिर में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे बीच में हो. नथिंग मैटर्स. एक एडजेक्टिव की क्वालिटी यही है कि वो क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा. तो देखो, इट लुक्स ग्रीन. एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब और मॉडिफाई प्रोनाउंस टू. हम इस पर भी बात कर चुके हैं. ठीक है, लुक एट दिस. In the three examples above, the adjective have followed linking verbs. देखें, linking verbs के साथ आया है.
इसमें जो बात समझने वाली है वो क्या है कि इन तमाम एग्जाम्पल में एडजेक्टिव जो है वो आपके लिंकिंग वर्ड के साथ आया है। इट लुक्स ग्रीन, जैक वाज ओल्ड, ही सीम्स cheerful, है ना। तो यहाँ ये आपको बताया गया। डिस्क्राइब द नाउन। व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड लाइक दिस दे आर कॉल्ड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। जब कभी भी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिएगा, इससे पर्टेनिंग आपकी एक्सरसाइजेस भी होंगी। जब कभी भी एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब्स को फॉलो करेगा, लिंकिंग वर्ब्स के साथ आएगा, तो उन्हें प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ये बात याद रखिएगा। लेट मी चेक, समवन इज सेइंग समथिंग इन द चैट बॉक्स। अपना कनेक्शन चेक करो मेहानी, अपना जरा करेक्ट वेब कनेक्शन चेक करो। अच्छा, मेरे पास यहाँ जो है ना वो लाइट का थोड़ा सा इशू है, और जो है लेट मी वेट फॉर अ व्हाइल, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। अच्छा, अगर इफ यू हैव सम प्रॉब्लम तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, अपने लैपटॉप में खोल लें, ठीक है। ये आई एम शेयरिंग माय लिंक विद यू। ये लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं चैट बॉक्स में, आप वहां खोल लें इसको, ठीक है। ये लें, ये लिंक ओपन करें। वंस यू ओपन दिस लिंक तो आपके पास ये जो है वो वहां आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये लिंक खोल लें तो यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा रुबा, आपके पास क्लियर है? इसका मतलब जिनके पास ब्लर हो रही है उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग अबाउट, कि मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। देखें, एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद भी आ सकता है। जब नाउन के बाद आएगा तो वो किसी लिंकिंग वर्ब को फॉलो करेगा। जैक ओल्ड इज डजंट मेक सेंस, है ना। जैक ओल्ड, कोई सेंस बन रहा है? जैक इज ओल्ड हो सकता है, जैक वॉज ओल्ड हो सकता है, जैक विल बी ओल्ड हो सकता है ना। इट ग्रीन डजंट मेक सेंस, इट लुक्स ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, नाउन के बाद में आ रहा है, तो इट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वॉज हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, लुक्स हो सकता है, सीम हो सकता है, फील्स हो सकता है, इट फील्स कूल, है ना, फील्स हो सकता है। तो जब कभी भी एडजेक्टिव किसी वर्ब के बाद आएगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अगर आपने ये लिंक ओपन कर लिए, प्रीडिकेटिव को और डिफाइंड सेंस में देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और पेज हो जाएगा, तो उसमें आपके पास ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी आ जाएंगे, ठीक है। यस, समवन इज सेइंग समथिंग, लेट मी चेक। यस, हो सकता है ओल्ड जैक वाज इल, है ना। ओल्ड जैक वांट टू डू समथिंग, व्हाटएवर, है ना। लेकिन ये प्रीडिकेटिव नहीं कहलाएगा ना। फिर आप मेरी बात समझ रहे हैं अलीजा? प्रीडिकेटिव कब कहलाएगा? जब एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, उस वक्त हम इसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये बात समझाना चाह रहा था कि जब भी एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और वो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होगा तो उसे प्रीडिकेटिव कहेंगे। अब लेट्स सी, ये देखिएगा। Sometime an adjective comes immediately after a noun. The Princess Royal, team immemorial, body beautiful, the best seat available, the first. When, अब सुनिएगा इसको, इसे क्या कहते हैं? When adjectives are used like this, they are called post positive adjective. क्या कहलाते हैं? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब नाउन के फौरन बाद आए और उसके दरमियान में कोई लिंकिंग वर्ब ना हो। बात समझ रहे हैं? दिस इज द डिफरेंस, है ना। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? लेट्स सी द एग्जांपल। समवन interesting, those parents, something evil. These are some of the examples here. Look at this. अब
A descriptive adjective will usually fit into one of the following categories. डिस्क्रिप्टिव कहते हैं जिसमें किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाए, उसके जज्बात को बयान किया जाए, है ना. That can be a personality, that can be a scene, that can be a location, that can be a room, anything else. तो वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव. यानी किसी भी चीज को बहुत डिटेल्ड में बयान करना, उसकी जज्बात में बयान करना. जैसे अगर आप लोगों का टेस्ट अच्छा है, अगर आप नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं तो जन्नत के पत्ते, हुमैरा अहमद का जो नॉवेल है जन्नत के पत्ते, उसने टर्की को इतने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी है कि उसने यहां तक बताया कि टाक्सम स्क्वायर का नाम टाक्सम क्यों है ना, और ये किस जबान का वर्ड है, कहां से आया है. तो इस तरह जब हम किसी चीज की अपीयरेंस और किसी भी चीज को बहुत डिफाइंड सेंस में लेकर आते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज करते हैं. तो उसमें देखें, अपीयरेंस की बात करें तो अभी आप लोग भी यूज कर रहे थे बिलर, है ना, बिलर आप यूज कर रहे थे. तो लेट्स सी, यहां भी कुछ वर्ड्स हैं अपीयरेंस के लिए. अट्रैक्टिव है, बर्ली है, क्लीन है, डस्टी है और मॉइस्टी है. बहुत सारे इस तरह के जो हैं वो क्या है, अपीयरेंस के हवाले से, कलर के हवाले से, कंडीशन के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से, सेंस, एरोमेटिक, अरोमा, बिटर, कोल्ड, डेफिनिंग, साइज और शेप. तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो इन कोई ना कोई कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर, she lived in a small room. she lived in a small room. कौन सी कैटेगरी होगी जरा बताएंगे जल्दी से, कौन सी कैटेगरी होगी? रिस्पॉन्स मी इन द चैट बॉक्स. which category I am talking about? She lived in a small room. Size and shape, absolutely, size and shape. अच्छा जनाब, this was a new era. This was a new era. कौन सा है, कौन सी कैटेगरी है? और इसमें एडजेक्टिव क्या है जरा बताएंगे, एडजेक्टिव क्या है और कैटेगरी कौन सी है? This was a new era. टाइम की कैटेगरी है, एडजेक्टिव क्या है इसमें? न्यू. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो दीज आर more about adjective. See this. अब adjective जो है वो किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं? लास्ट टाइम आपको मैंने कुछ पढ़ाया था ना, मॉडिफायर्स पढ़ाए थे, तो उसमें हमने ये बात की थी. ये देख रहे हैं आप, डॉग आ रहा है, दैट आ रहा है यहाँ. अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है. लेट वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल बी शेयरिंग इट अगेन. अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? जो अभी पढ़ा हमने एडजेक्टिव के बारे में, हमने बात की, एडजेक्टिव्स की कुछ टाइप्स देखी. अभी हमने इसकी डिग्रीज की बात नहीं की है. किसकी बात नहीं की है? डिग्रीज की बात नहीं की है कि एडजेक्टिव की कौन कौन सी डिग्री होती है. और यस, एडजेक्टिव की डिग्री जो है, कुछ पता है एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और किस तरह फॉर्मेशन होती है? एनी आइडिया अबाउट? कोई आइडिया? अब देखिएगा, द ट्रांजिशन फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव टू डिटर्मिनर्स. ठीक है, कभी कभार क्या होता है, लेट मी, 3 डिग्रीज. वेरी गुड. सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और एक और भी तो है. पहली वाली डिग्री कौन सी होती है? हाँ, 3 डिग्रीज तो होती हैं. पहली वाली कौन सी होती है लीजा? सुपरलेटिव, कंपैरेटिव तो सेकंड और थर्ड है. यस, एब्सोल्युटली मुनीब और महनूर. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. लेट्स सी, यहां रुकते हैं. मिसाल के तौर पर देखिएगा, मिसाल के तौर पर सी दिस, डीप. क्या है ये? डीप. लुक एट दिस, डीप, है ना, डीप. तो इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव क्या होगा जरा बताएंगे? पॉजिटिव और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा? डीपर और डीपेस्ट. ठीक है. अच्छा जनाब, जरा इसका बताइएगा,
एंशियंट, एंशियंट का मतलब पता है ना, एंशियंट, एंशियंट, इसका क्या होगा? एंशियंट का क्या होगा? मोर एंशियंट और द मोस्ट एंशियंट। अच्छा सर, यहां सवाल आ सकता है, सर आपने उसके साथ तो ईआर और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना दिया, सर यहां आप मोर और मोस्ट लगा रहे हैं, क्या रूल फॉलो कर रहे हैं वो भी बता दें। एनी आइडिया अबाउट कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ? मैंने यहाँ एंशियंट में तो क्या लगाया, मोर और मोस्ट लगाया, जबकि मैं डीप में ईआर और ईएसटी लगाकर फॉर्मेशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसे? एनी आइडिया? कोई मुझे रूल बताएगा क्या रूल फॉलो हो रहा है? वेरी गुड रूबा, एब्सोल्युटली। मोनोसिलेबल एंड डाइसिलेबल एंड ट्राइसिलेबल है ना, मोर देन वन सिलेबल कैन बी कंसिडर्ड एज मोर और मोस्ट। अब देखें, जैसे ब्रॉड है, ब्रॉड का क्या होगा जरा जल्दी से बताओ? ब्रॉड, ब्रॉड का क्या होगा? ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट। अब देखो ब्रॉड जो है ना वो वन सिलेबल वर्ड है। कितना? वन सिलेबल वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड जो है बेसिकली वन सिलेबल वर्ड है, ब्रॉड है ना। और ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट। लेकिन अगर मोर देन वन सिलेबल वर्ड होगा, जैसे सर, क्यू, लर, एन, शी, एंड है ना, एंड शी एंड, तो एरोमैटिक, देख रहे हैं, चार सिलेबल। इसी तरह ब्यूटीफुल, एट्रैक्टिव, मोर एट्रैक्टिव और मोस्ट एट्रैक्टिव। मोर देन वन सिलेबल वर्ड का कहलाता है डायसिलेबल या ट्राइसिलेबल। मोर देन वन सिलेबल वर्ड को जब हम बनाते हैं तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं उसके साथ, और जहां हमारे पास वन सिलेबल वर्ड होता है तो उसके साथ हम या तो ईआर लगाते हैं या फिर ईएसटी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। आज का लेक्चर यहीं हम इख्तिताम कर रहे हैं। कल हम यानी नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव के ही इसी टॉपिक को और ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, और जो है उसको बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन में लेकर आएंगे, और किस तरह आपके पास पेपर में सवालात आते हैं वो तमाम चीजें भी डिस्कस होंगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू, देखें आप लोगों के साथ जो भी असाइनमेंट्स वगैरह शेयर हो रहे हैं, एमकैट, ईकैट, बीएस के स्टूडेंट्स, प्लीज वो टाइम पर कर लें। हम आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। कोशिश करें, अगर आपका कोई काम इंग्लिश में भी पेंडिंग है, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीक में आपको इंग्लिश के रीडिंग असाइनमेंट्स भी देने वाला हूं, तो काइंडली आप लोग चेक कर लें कि आपके पास अभी तक जितने असाइनमेंट्स आए हैं, हैव यू डन ऑल दीज थिंग्स? ठीक है, अभी मैंने फिजिक्स का चैप्टर का शेयर कर लिया है, चैप्टर नंबर 7 का शेयर कर लिया। अजलान अपने पास उसमें देख लीजिएगा, आप क्या नाम है अपना, गूगल क्लासरूम में मैंने मैसेज भी किए बच्चों को, तो गूगल क्लासरूम में काइंडली चेक कर लें। मैंने आज फिजिक्स का और बायो का असाइनमेंट अपलोड किया, और उसका 3 दिन का टाइम है आपके पास, और उसके बाद वो हट जाएगा वहां से। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम विद यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होपफुली कि आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।